Morning everyone, this is Ashma Shukla and you're watching us on Entry channel. In this video, we're going to talk about daily news events, that is the news events which occurred the last day, that is 10th of November, and a bit of 9th of November, whichever were left behind, right? So we're going to talk about all the news events that haven't been discussed and are important for examination perspective as well, that is for your examination, right? Before we begin on our news events, for all the new viewers, I would like to bring your notice towards the format of the class. This class is going, ये जो class है ये किस format में चलेगी? This class is going to go in two formats. One being the descriptive part, जिसके अंदर हम लोग वो news events discuss करते हैं जो थोड़े से detail में discuss करने की जरूरत है या multiple pointers हैं उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए. Second part being the one liner, जिसके अंदर कुछ वो न्यूज इवेंट्स हैं जो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव में हमें एग्जामिनेशन के तौर पे याद रखना जरूरी नहीं है, तो वन लाइन के फॉर्म में वी कैन रिमेम्बर देम, बट ऑल आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड वेल सो दैट आप लोगों को वो न्यूज इवेंट समझ में भी आए और याद भी रहे. Right, before we move ahead with our news events, I would like to bring to your notice towards Entri App. Now, Entri App is special, or you can say different in all the formats, as कि इसके अंदर multiple languages का option है, यानी आप अपनी मर्जी की language choose कर सकते हैं, which also includes English. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लिखी हुई है ये, इसके साथ साथ English भी available है. That is, you can watch in any language you're comfortable with, and सभी languages में language based course है, language based study material है, और वो भी सभी examinations के लिए. So that makes it different, क्योंकि सिर्फ language add करना जरूरी नहीं है, language में material भी हो ये जरूरी है. So we have added the material also, we have added the examination also, and सभी के लिए टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोस भी अवेलेबल है ऐप पे, कोर्सेज भी रनिंग है, एंड करंटली 7 days ट्रायल भी चल रहा है. सो ऑल यू कैन डू इज go and download this app from Play Store, where you will find this app and at least give it a trial for it being a different one. Right, now we're going to begin with our news events. हमारे news events शुरू करते हैं. So the first news event for today is Migration Policy Index. Now ये इंडेक्स के अंदर क्या है, जैसे कि नाम के अंदर दिया गया है, इंटर स्टेट इंडेक्स है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर स्टेट इंडेक्स, जिसके अंदर इमिग्रेंट जो माइग्रेशन होता है इंटर स्टेट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, उनके माइग्रेशन करने की वजह से उनको कितना कंपैटिबिलिटी है, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्या उन्हें बराबर की जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है नहीं, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे फ्रीडम है मूवमेंट का. तो वो मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या इंटर स्टेट मूवमेंट पे अवेलेबल है या नहीं, वो कंपैटिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, उसे और अच्छा बनाने के लिए वी हैव दिस माइग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स, जो कंपैरिजन करता है स्टेट्स के बीच में कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसमें. तो ये इंडेक्स किसने रिलीज किया इंडिया माइग्रेशन नाउ ने. एंड के अंदर अगर इंडिया का एवरेज स्कोर, सभी स्टेट्स का एक एवरेज निकाला जाए, तो एवरेज जो था वो 37 रहा आउट ऑफ 100. So the score or the comparison was on the scale of 100 with the average being 37. Right, now इसके अंदर अब स्टेट वाइज जो इंडेक्स तैयार हुए उसके अंदर इफ यू हैव अ लुक, तो केरला, गोवा, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश ये काफी सक्सेसफुल स्टेट्स हैं माइग्रेंट वर्कर्स को लोकल्स के साथ मर्ज अप करने में, उनको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में. तो बेस्ट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स इज केरला, गोवा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एज पर दिस इंडेक्स. On the other hand, Delhi is the least interstate migrant policy index, यानी कि सबसे कम migrant policy या सबसे less effective migrant policies जो है वो दिल्ली की देखने को मिली. Right? Now, as I told you, movement is a fundamental right. It's a fundamental right in India that you can move from one state to another and you're not bound by any boundary. ऐसा नहीं है कि उसमें movement जो है वो आप लोगों को जैसे inter country होता है ऐसा होगा. You don't have to do any of such things जैसे United States में होता है. So laws by central government now
माइग्रेंट वेलफेयर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या इन दी सेंटर वी हैव सर्टेन लॉज ऑल्सो। तो वो लॉज कौन कौन से हैं जो माइग्रेंट्स को और इजी करने, माइग्रेशन और इजी करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। दैट इज मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, जिसके अंदर मिनिमम वेजेस सेट की गई थी कि कोई भी एम्प्लॉय होता है उस स्टेट के अंदर तो उसको कम से कम इतना पेमेंट मिलना ही चाहिए। सो मिनिमम वेजेस एक्ट इज वन। देन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, जिसके अंदर कंडीशंस ऑफ सर्विस इम्प्रोवाइज की गई, उनको रेगुलेट किया गया। इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976, जिसके अंदर देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंशिएशन अमंग पीपल वर्किंग। एंड फिर है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनके लिए भी रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट है 1996। ये एक्ट जो है दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द पॉलिसीज इन द माइग्रेशन, राइट। तो यहाँ पे हमारा माइग्रेशन इंडेक्स कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर वी हैव सीन अ फ्यू पॉइंटर्स, देम बीइंग की इंडेक्स बेस्ट रैंक कौन है, किसने रिलीज किया, और कौन कौन से एक्ट्स हैं जो माइग्रेशन को कंट्रोल करते हैं। The next with news with event which we have is Flexi Cap Fund. Now Flexi Cap Fund क्या है? ये एक म्यूचुअल फंड का नई कैटेगरी है। इट्स अ न्यू कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड जो सेबी ने रिलीज करी है। सेबी हैज रिलीज दिस न्यू कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, इसीलिए इसे फ्लेक्सी कैप नाम रखा गया है। जैसे नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स में एक सर्टेन टाइम फिक्स होता है, तो वो टाइम थोड़ा सा कम करने के लिए, यानी किसी को अगर शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, तो फिर उसके लिए एक ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए फ्लेक्सी कैप फंड तैयार किया गया, राइट। तो ये सेबी ने लॉन्च किया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 65% है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का। तो जितने भी इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें the investment is going to be 65%. Good morning, Trilok. Welcome to the session. All right. Then cap cap कौन लगाएगा ना? Who is going to decide कि asset management किस limit पे होना चाहिए? That is going to be asset management company. Now one more point that you need to know about is about SEBI. कि SEBI के headquarter कहाँ है? SEBI के chairperson कौन है? So that I leave to all of you. तो जो भी live viewers हैं, you can directly tell us कि headquarter कहाँ है और chairperson कौन है. It's a very static question. Morning, Sujit. So answer on this question, answer on this part I leave on you, and I'll be waiting for the answer that who is the current chairperson of SEBI and where are the headquarters of SEBI. It was founded, I tell you, it was founded in 1992 on 12th of April. So answer this quickly. All right. So Lucknow as comes, Mumbai as comes, Trilok and Sujit. Well, SEBI is the stock exchange board, right? Securities and Exchange Board. Securities and Exchange कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा? ये सबसे ज्यादा सबसे पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑल ऑफ दीज ये कहाँ पे है? मुंबई में। इसीलिए ये भी मुंबई में ही बनाया गया है। इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन मुंबई। सो ऐसे याद रख सकते हो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज का सबसे बड़ा ट्रेड मार्केट हमारा मुंबई में है, बीइंग द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो वहीं पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं। चेयरपर्सन we are still left with Ajay Tyagi. Sujit, that is right. Ajay Tyagi is the current chairperson of SEBI. Right? Moving ahead, Project Future Ready. Now, anyone from you who has any idea about this, thoda sa idea hai, you can share, and then I'll move ahead with explanation of this. Project Future Ready एक स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, as I can tell you as of now. स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है. सो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द सेंस कि इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी टू ऑल दी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, जिससे कि बाहर की इन्वायरमेंट में प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उसके लिए भी उन्हें स्किल डेवलप हो सके या वो लोग स्किल्स डेवलप कर सके अपने लिए. यस, सिडबी का है लखनऊ में. त्रिलोक, दैट्स राइट. सिडबी हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन लखनऊ. All right. So when it comes to this part, Project Future Ready.
प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी जो है ये डेल टेक्नोलॉजीज, अमेरिका इंडिया फाउंडेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, इन चारों ने मिलके इसे तैयार किया है और करंटली ये मुंबई और दिल्ली के अंदर लॉन्च होने वाला है। इसके अंदर क्या है, जो यूनिवर्सिटी के मेजर फैकल्टीज हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि या वर्कशॉप्स ली जाएंगी उनकी पहले, एंड देन वो वर्कशॉप्स बच्चों को ट्रांसफर की जाएंगी, उनके लिए कंडक्ट की जाएंगी, जिससे कि स्किल डेवलपमेंट हो थ्रू करियर मेंटरिंग, कौशल विकास प्रदान करने के लिए मेंटरिंग के थ्रू, फिर ऑनलाइन स्किलिंग प्लेटफॉर्म, जितने भी स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, और बाजार संरेखित कौशल प्रदान करने के लिए, मार्केट अलाइंड स्किलिंग, मार्केट में किस स्किल की ज्यादा रिक्वायरमेंट है और उसे कैसे डेवलप करें, वो चीज भी इसके अंदर होगी। सो दैट इज अबाउट दिस प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी, कि फ्यूचर के लिए तैयार किया जाए। Right now, a few one-liners. The first one being Indian astronomers have collaborated with 2020 Physics Nobel laureate Professor Andrea Ghez on 30-meter telescope project जो हुआवी में बनने वाला है। So इधर से फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोगों का यही आ गया, पॉसिबल क्वेश्चन, कि फिजिक्स नोबेल प्राइज इस बार किस किस को दिया गया था। देयर वर 3 विनर्स ऑफ नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स नोबेल प्राइज के विनर इस बार 3 थे, उनमें से एक थी द वुमेन अवॉर्डी was प्रोफेसर एंड्रिया गैस। नाउ ये 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है, ये इंडिया ने ये लोकेशन सजेस्ट करी है। ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो टेलीस्कोप तैयार किया जाएगा ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, यूवी से, मीडियम इंफ्रारेड रेडिएशन के बीच के जो रेडिएशंस है उनको यूज किया जाएगा। इट्स गोइंग टू गिव अ वाइडर अंडरस्टैंडिंग। क्या ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है? नहीं, इसके अंदर इंडिया, चाइना, जापान, कैलिफोर्निया, कनाडा, ये पांचों स्टेट्स कंसर्न हैं। ये 5 के 5 इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं इसको और डेवलप करने के लिए, सो दैट आवर वाइडर अंडरस्टैंडिंग इज देयर। ठीक, इसके अंदर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर भी है, वाइड फील्ड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर भी है, इंफ्रा मल्टी ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोमीटर भी है, which gives us a high range of understanding also, right? Now, next is Nepal's President Vidya Devi Bhandari has recently released a special pictorial anthology on Mahatma Gandhi to mark the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. Now, ये जो anthology है इसका नाम है मैली बुझे को गांधी, या द गांधी एज आई अंडरस्टूड, एंड ये जो एंथोलॉजी है ये नेपाली के अंदर लिखी गई है। दिस लैंग्वेज ऑफ राइटिंग इज नेपाली, राइट। नाउ इसके अंदर जो 2 साल से 150th एनिवर्सरी चल रही है उसके बारे में इट हैज द इंफॉर्मेशन ऑन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ नेपाल के प्रेसिडेंट हाल ही में न्यूज में भी रहे थे, कुछ वीडियोस पहले, आई थिंक 1-2 दिन पहले ही मैंने बताया था कि वो न्यूज में भी रहे थे। द रीजन व्हाई ही वाज इन न्यूज इज बिकॉज the reason general army general या chief of army staff मनोज मुकुंद नारवाने को जनरल ऑफ नेपाल आर्मी का एक ऑनररी टाइटल दिया गया था, और ये टाइटल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री देता है, यानी इंडिया भी देता है, नेपाल भी देता है। तो मनोज मुकुंद नरवाने जो इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्हें जनरल ऑफ नेपाल आर्मी का पोजीशन भी नेपाल के प्रेसिडेंट ने दिया था। सो द प्रेसिडेंट इज विद्या देवी भंडारी। वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज, 1-2 दिन आई थिंक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आर्मेनिया का इशू डिस्कस किया था, कि वहां पे जो इशू चल रहा है अबाउट अ लैंड ओवर हेयर, ये इथियोपिया के अंदर जो इशू चल रहा है वो भी खड़ा हो गया है। इथियोपियन नेशनल डिफेंस फोर्सेस ने टिग्रे रीजन के अंदर एयर स्ट्राइक कंडक्ट कर दी, जिसकी वजह से इथियोपियन गवर्नमेंट और टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट, इन दोनों के बीच में इशू हो गया है। नाउ कैपिटल ऑफ इथियोपिया इज एडिस अबाबा। टिग्रे और इथियोपिया के बीच में इशू किसको लेकर है? इट इज अबाउट द हेड ऑफ द स्टेट। Now, who is the head of the state of Ethiopia? That comes as a question.
ये जो पूरा इशू है ये वहां के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनको लेकर है. द रीजन इज दैट दे डिड नॉट वांट हिम टू बी द प्राइम मिनिस्टर. जो प्राइम मिनिस्टर हैं इथियोपिया के, वो उन्हें चाहते नहीं थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने. बट सिंस ही बिकेम इन 2018, तब से देयर हैव बीन कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग इट. Right now, as for the answer of this question, it is Abiy Ahmed. He is also the winner of Nobel Peace Prize. Abiy Ahmed is the current prime minister, or he is also the winner of Nobel Peace Prize of 2019. 2019 में नोबेल पीस प्राइज मिला था इन्हें. एरिट्रिया और इथियोपिया का जो इशू था उसे बिना लड़ाई के सॉल्व करने के लिए. और यहाँ पे अब तिग्रे रीजन के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर हो रखी है बिकॉज उन्होंने एयर स्ट्राइक करवा दी ऑन द लोकल इश्यूज दैट हैव बीन गोइंग ऑन. स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी जनरल कंसेंट हटा दिया है ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर सर्टेन केसेस. नाउ सीबीआई को अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि केरला ने भी रिमूव किया. इससे पहले हमने देखा था कि केरला ने रिमूव किया, कि उन्होंने मना कर दिया कि सीबीआई को वो स्पेशल राइट्स नहीं है. अब पंजाब ने भी मना कर दिया. इससे पहले वेस्ट बंगाल, राजस्थान ये ऑलरेडी मना कर चुके हैं. तो सीबीआई को ये जो राइट है ये दिल्ली पुलिस एक्ट के अंदर मिला था, जिसके अंदर दे कुड conduct the Nepal award. Well, that is what we can say on it. So, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये स्पेशल राइट दिया गया था कि वो किसी भी ज्यूरिसडिक्शन में बिना स्टेट गवर्नमेंट की नॉलेज, बिना स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लिए इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं. अगर कोई ऐसा केस है तो इन्वेस्टिगेशन कैन कैरी ऑन. लेकिन स्टेट्स के ऊपर भी डिसीजन छोड़ा गया एंड सर्टेन स्टेट्स हैव रिफ्यूज्ड टू डू दैट. रीसेंट वन, सबसे रीसेंट कौन कौन से है? पंजाब एंड केरला. सो यू मस्ट नो अबाउट बोथ ऑफ देम एट लीस्ट. ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग. नाउ ब्रिक्स का कौन सा बैंक है दैट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर. ब्रिक्स ने कौन सा बैंक डेवलप किया है एंड व्हेन वाज इट डेवलप्ड? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू टिल आई डिस्कस दिस. तो ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और इसका जो बैंक है उसका नाम आपको बताना है. इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन फॉर ऑब्वियस रीजन सिंस इट इन्वॉल्व्ड फाइनेंस. तो इंडिया को रिप्रेजेंट भी उन्होंने ही किया था. बट moving ahead on that part, what was the requirements of the meeting? What was this idea of meeting? They wanted to एक्सपैंड द बैंक. जो ब्रिक्स नेशंस ने मिलके बैंक तैयार किया है उसकी मेंबरशिप को एक्सपैंड करना इज व्हाट दे वर वर्किंग एट. दे वांटेड टू डू दिस, राइट? सो एनी आइडिया अबाउट बैंक का नाम क्या है? विशाल, गुड मॉर्निंग. The stream is running quite a bit lagged, so I'll expect कि आप लोगों ने जब तक आंसर दे दिया होगा, so I'll just answer it now. It is the New Development Bank. New Development Bank. Now ये जो New Development Bank है, this was formed at Fortaleza Summit in 2014. 2014 में there was a Fortaleza समिट और इस समिट के अंदर इस बैंक को तैयार किया गया था एंड करंटली इट इज वर्किंग ऑन अ वेरी गुड रैंकिंग. A++ रिस्क रेटिंग है फिच एंड स्टैंडर्ड की तरफ से. मूडीज की AA या AA1, AA2 ऐसी रैंकिंग चलती रहती है. सो दैट्स अ गुड मूड इफ वी से, राइट? इसके अलावा ब्रिक्स ने क्रिटिकल अग्रेरियन स्टडीज भी शुरू करी हुई है. क्रिटिकल एग्रेरियन स्टडीज, राइट? तो ये भी शुरू की हुई है ब्रिक्स नेशंस ने, विच हैज बीन ऑनगोइंग, जो ग्लोबल एग्रीगेरियन ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर कंसर्न रखता है. उसके एकेडमिक रिसर्चेस को फाउंड करता है, सोशियोलॉजी को बेसिस देता है, इकोलॉजी को बेसिस देता है. सो इट इज बेसिकली अबाउट द ब्रिक्स इनिशिएटिव ऑफ एग्रीगेरियन स्टडीज. नेक्स्ट, एनजीटी ने टोटल बैन इम्पोज कर दिया फायर क्रैकर्स पे बिटवीन 9 and 30 नवंबर इन दी एनसीआर रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन. एनजीटी बीइंग द ग्रीन ट्रिब्यूनल, विच वी हैव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. इसी से रिलेटेड वी हैव दी असम न्यूज ऑल्सो गोइंग ऑन. असम न्यूज पे भी डिसीजन दिया है, पेनल्टी वगैरह राइज करी है. एंड त्रिलोक, ओके, सो
answer for this part of the question that comes. So Assam के अंदर भी in the Bagjan well they have given a penalty penalty facility and NGT के अंदर total ban लगाया गया है फायर क्रैकर्स के ऊपर. साथ ही साथ दिल्ली रीजन के अंदर कमीशन भी बनाया गया, कमेटी भी बनाई गई है जिसमें एनवायरमेंट कमेटी को रिप्लेस कर दिया है एयर पॉल्यूशन कमेटी से. और एयर पोल्यूशन कमेटी जो है ये ऑर्डिनेंस से बनी है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डिनेंस पास किया जिसकी वजह से ये कमेटी बनाई गई. ऑर्डिनेंस क्या होता है? व्हाट इज ऑर्डिनेंस? I give you some time to define that. What is ordinance exactly? First state राजस्थान जिसने पटाखा बैन किया, बिल्कुल सही. So what exactly is an ordinance? Now ordinance क्या होता है कि जैसे जब भी हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम फंक्शनिंग नहीं है, it is not in the session right now, but there is a certain decision that needs to be taken place. राइट, कोई सर्टेन डिसीजन है जो होना चाहिए, तो एक ऑर्डिनेंस पास होता है विच इज इक्विवेलेंट टू एन एक्ट, लेकिन वो अगले 6 महीने में पार्लियामेंट में भी पास होना चाहिए, क्योंकि अगले 6 महीने में डेफिनेटली पार्लियामेंट्री सेशन होगा, क्योंकि 2 पार्लियामेंट्री सेशन 6 महीने के गैप में होने जरूरी है. तो उस अगले 6 महीने के अंदर वो पास हो जाना चाहिए, लेकिन तब तक के लिए दैट ऑर्डिनेंस बिकम्स द लॉ. राइट, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पास करते हैं. पंकज सिंह, द क्लास takes place daily at 8 a.m. सुबह 8 बजे we bring this class to all of you. Right? All right. Next one is discoms to mandatorily brought under Energy Conservation Act 2000, जिससे कि एनर्जी कितना कंजर्व हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, वो सब रेगुलेट किया जा सके. This is the idea of it. Right? Now, Trailblazers defeated the Supernovas by 16 runs and won Women's T20 Challenge Trophy. यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इसके स्पॉन्सर कौन थे. कुछ दिन क्वेश्चन पहले ही आई गेस मैंने बताया है इसका आंसर. तो ये शारजाह में हुआ था Women's T20 Challenge Trophy एंड इसके अंदर टोटल 3 टीम्स थी. देयर वर 3 टीम्स व्हिच वर देयर एंड इसमें से Trailblazers has won and Supernova is the runner up or the second rank. Okay, so now as we come to the sponsor, ये पहली बार था कि किसी कंपनी को या स्पॉन्सर को पर्टिकुलर किसी एक ही इवेंट के लिए स्पॉन्सर रखा गया हो. वरना यूजुअली जैसे आईपीएल है तो फॉर अ लॉन्ग टर्म दे कम अप ऑन द प्लेस एंड मेंस एंड वुमेन्स के अंदर डिफरेंशिएशन इतना नहीं रखते हैं. बट दिस टाइम द स्पॉन्सर टीम वाज रिलायंस जियो and it was sponsored only for the women's T20 challenge trophy. Right? नेक्स्ट, इंडिया ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट भी रिसेंटली ऑर्गेनाइज करी विच वाज चेयर्ड बाय द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन. सो ये मतलब अटेंड होने वाली है, इट इज सून टू अकर एंड इंडिया इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट. इंडिया कब मेंबर बना था ये इंपॉर्टेंट है. तो मेंबर बना था इंडिया इन 2017 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों साथ में मेंबर बने थे. Captain Smriti Mandana, Trilok, that is also right. The captain of Trailblazers was Smriti Mandana. Right. नेक्स्ट, डीआरडीओ ने फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम तैयार किया फॉर पैसेंजर बसेस एंड ये टेक्नोलॉजी कैसी है जो 30 सेकंड से कम में फायर डिटेक्ट कर सकती है एंड लेस देन 60 सेकंड्स में फायर एक्सटिंग्विश भी कर सकती है. तो ये जो फायर डिटेक्शन डिवाइस है ये डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया है. डीआरडीओ बीइंग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. राइट नाउ over here, moving ahead, November 10 को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट होता है. इस बार का थीम था साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी.
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है इसके अंदर थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, यानी कि 10 नए सेक्टर इंप्रूव किए गए हैं या ऐड किए गए हैं। उनमें से 4 अनाउंस हुए हैं, 6 अभी अनाउंस होंगे। और ये सारा वर्क किसने किया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने डिसाइड किया कि 10 नए सेक्टर होने चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली सेल्फ प्रोडक्शन या डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हम कहें डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लाई गई। यानी कि इसके अंदर क्या है, वैसे ये मार्च 2020 में लॉन्च हुई थी, और इसके अंदर क्या सिस्टम है कि कोई भी डोमेस्टिक कंपनी अगर अपना सेल्स इंक्रीज करती है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंपनी अपना सेल इंक्रीज करेगी, तो उस सेल पे इंसेंटिव दिया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 4 to 6% का इंसेंटिव उस कंपनी को दिया जाएगा। तो इंसेंटिव देना कंपनीज को ऑन द इंक्रीमेंटल सेल्स, जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जाएगी, अगर सेल्स बढ़ रही है तो उस बेसिस पे उन्हें इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा डोमेस्टिक यूनिट्स पे। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। एंड इसके अंदर अब 10 नए सेक्टर इंक्लूड किए गए, इंक्लूडिंग द टेक्सटाइल सेक्टर, वन ऑफ देम। यूएई ने इस्लामिक लॉज को रिलैक्स किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूएई ने जो रिलैक्सेशन दिया है वो है लिव इन, एज वी से, लिव इन रिलेशनशिप्स या कोहैबिटेशन ऑफ अनमैरिड कपल्स एज वी कैन से। तो अविवाहित जोड़ों को साथ में रहने के लिए, क्योंकि इस्लामिक लॉज यू माइट हैव सीन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उस चीज के लिए दे हैव brought this relaxation to them. नेक्स्ट, अल्कोहल रिस्ट्रिक्शंस लूजन अप करी हैं। पहले घर में बैठ के अल्कोहल भी नहीं पी सकते थे, दे हैड टू टेक अ लाइसेंस फॉर ड्रिंकिंग अल्कोहल एट होम और कंज्यूमिंग अल्कोहल एट होम, तो वो चीज अब हटा दी है। ऑनर किलिंग्स का जो क्रिमिनल ऑफेंस था, एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, वो थोड़ा सा हल्का कर दिया गया है। तो एंड यूएई एक्सपैट्रिएट्स, यानी वो लोग जो वहाँ के नेटिव्स नहीं हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन दे लिव आउटसाइड इंडिया बट दे आर लिविंग ड्यू टू देयर वर्क पर्पसेस, उनके यू माइट हैव सीन यूएई इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसमें 80% एक्सपैट्रिएट्स होते हैं। जो ये लूजनिंग ऑफ इस्लामिक लॉज इसीलिए किया गया है जिससे कि एक्सपैट्रिएट्स डोंट फील आउट ऑफ होम ओवर देयर, क्योंकि यहाँ पे सिटीजन्स टू एक्सपैट्रिएट्स का रेशियो भी काफी ज्यादा गैप्ड अप है। राइट, सो विद दिस वी आर वाइंडिंग अप आवर सेशन। आप लोगों को अगर कोई डाउट है किसी भी न्यूज इवेंट में, यू आर मोस्ट वेलकम टू ब्रिंगिंग इट अप राइट ओवर हेयर। 2015 प्रेसिडेंट सीईओ अमिताभ कंत, दैट इज राइट। एंड इसमें प्राइम मिनिस्टर इज द प्रेसिडेंट एंड सीईओ इज अमिताभ कंत, लोग बिल्कुल सही, यू आर ऑल राइट ऑन दैट। Really sorry about the delays in answering or taking up your doubts because what we have is यहाँ पे lagging थोड़ा सा ज़्यादा है, time lag video और live और मेरे बीच में, so therefore there are certain issues. So for all those who are preparing for NTPC का ongoing YouTube पे live batch है जो आप लोग देख सकते हैं. It begins at 10 a.m. ends at 2:30 p.m. and it has all of your subjects covered. Right, so with this I will wind up the session. If you don't have any doubts, thank you so much for being with us and I hope this session was helpful to all of you. सबके लिए helpful रहा हो, enhancing रहा हो notes में. See you in the next video. ये session जो है ये daily सुबह 8 बजे आता है. So I'll see you then. You can subscribe to the channel for updates.